Welcome students, hope so you are doing good. Today we are going to start SST of class 3. We will start unit number 2 subunit and the title of this unit is Destruction of Animal Habitat. जानवरों की रिहाइश गाहों की तबाही. Let's move towards the page number 22. Before starting reading and explanation, we must know about the definition of destruction. Definition of destruction is the action or process of causing so much damage to something that is not longer exist or cannot be repaired. चीज़ को नुकसान पहुंचाने का अमल जो काबिल मुरम्मत ना रहे उसे डिस्ट्रक्शन या तबाही कहते हैं. Let's start reading and explanation. Animals habitats on land and in the ocean are in constant danger due to two major reasons. First one is deforestation and the second is pollution. जानवरों की रिहाइश का ज़मीन और समंदर में मुस्तकिल तौर पर ख़तरे में है. इसकी दो बड़ी वजूहात हैं. पहली जंगलात की कटाई और दूसरी आलूदगी. Let's move toward the first major reason that is deforestation. जंगलात का कटाव. And the definition of deforestation is the action of clearing a wide area of trees. दरख्तों के वसी इलाके को साफ करने की कार्रवाई. Let's move reading and explanation. Deforestation is caused by felling, cutting down or destroying the trees in a forest for some reason. Sometimes large areas of a forest are destroyed to build factories, homes, farm, ranches, etc. In most cases, trees are cut down in a forest to get wood. This wood is then used to make furniture, houses, paper, etc. जंगलात की कटाई किसी वजह से जंगल में दरख्तों को काटने या तबाह करने की वजह से होती है. बाज़ औक़ात जंगल के बड़े हिस्से फैक्ट्रियाँ, मकानात, खेत वगैरह तैयार करने के लिए तबाह कर दिए जाते हैं. ज़्यादातर लकड़ी के लिए जंगल के दरख्त काटे जाते हैं. फिर इस लकड़ी को फर्नीचर, मकानात, कागज़ वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है. Let's move second paragraph of deforestation. Forests are home to millions of animals such as reptiles, butterflies, insects, birds, wild animals, etc. Felling or destroying trees disturbs the natural habitat of these animals and they are either killed or become homeless. Some animal types are finished completely and become extinct. Their type does not exist anywhere in the world. जंगल में लाखों जानवरों के घर हैं जैसे मखनों के कीड़ों, परिंदों और जंगली जानवरों वगैरह के. गिरने या दरख्तों की तबाही करने से कुदरती रिहाइश का हलाक और बेघर हो जाती हैं. जानवरों की कुछ इकसाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं या ख़तरे में आ जाती हैं. इनकी किस्म दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है. नेक्स्ट हेडिंग इज़ कंट्रोलिंग डिफोरेस्टेशन. जंगलात की कटाई पर काबू पाना. लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. डिफोरेस्टेशन कैन बी कंट्रोल्ड एंड ट्रीज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय रिमेंबरिंग द रूल्स ऑफ ट्रीज. जंगलात की कटाई पर काबू पाया जा सकता है और दरख्तों के कवानीन को याद करके दरख्तों की हिफाजत की जा सकती है. First rule is teach and educate people not to cut down trees. दरख्तों को ना काटने के लिए लोगों को तालीम दें. Second rule is restore damaged forest by planting more trees on land where forests have been cut down. जहाँ जंगलात काट दिए गए हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर तबाहशुदा जंगलात को बहाल करें. Come to the page number 23 and the third rule is encourage recycling of paper to reduce the use of wood. लकड़ी के इस्तेमाल को कम करने के लिए कागज़ की रिसाइकलिंग की हौसला अफजाई करें. Fourth rule is establish small parks to protect animal habitat. जानवरों की रिहाइश गाह की हिफाजत के लिए छोटी छोटी पार्क कायम करें. Fifth rule is support projects that work together to protect forest. जंगलात की हिफाजत के लिए मिलकर काम करने वाले मंसूबों की हिमायत करें. Second main reason of destruction of animal habitats is
pollution, aludgi. And the definition of pollution is the introduction of harmful materials into the environment. आलूदगी माहौल में नुकसानदेह मवाद का तारुफ है. Let's start reading an explanation. Over 1 million seabirds and 100,000 sea mammals are killed by pollution every year around the world. It is necessary to understand what causes pollution and how we can control it in order to reduce the destruction of animal habitat. There are two major types of pollution that destroy animal habitats. पूरी दुनिया में हर साल 8 लाख समुद्री मैमल्स आलूदगी की वजह से मरते हैं. जानवरों की रिहाइश गाहों की तबाही को कम करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आलूदगी के सबब क्या हैं और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं. आलूदगी की दो बड़ी किस्में हैं जो जानवरों की रिहाइश गाहों की तबाही करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी. Now come to the definition of air pollution. Air pollution is a mix of hazardous substances from both human-made and natural sources. फ़िज़ाई आलूदगी इंसानी और कुदरती ज़राए दोनों से ख़तरनाक चीज़ों का मजमुआ है. Let's start reading an explanation. The air we breathe becomes harmful and dirty when dangerous gases, dust particles and fumes are added to the atmosphere. Most of these gases are produced by cars, trucks, vans, aeroplanes, etc. Factories and industries also produce large amounts of gases. These gases mix with the air and make it poisonous. A large number of birds die because of this. जब माहौल में ख़तरनाक गैस, धूल के ज़रात और धुएँ शामिल हो जाएं तो वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो गंदी हो जाती है. ज़्यादातर गैसेस कारों, ट्रकों, वैनों, जहाज़ों वगैरह से पैदा होती हैं. फैक्ट्रियाँ और सनतें भी बड़ी मिकदार में गैसेस पैदा करती हैं. ये गैसेस हवा में मिल जाती हैं और इसे जहरीला बना देती हैं. परिंदों की एक बड़ी तादाद इसकी वजह से मर जाती है. सेकेंड टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी. And the definition of water pollution is the contamination of water bodies usually as a result of human activities. आबी आलूदगी आबी जिस्मों में इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में पैदा होती है. Let's start reading an explanation. Water pollution is caused by poisonous waste from factories which is dumped into water channels without first being made harmless. This is affecting marine habitat in most of the world's ocean. Rivers and lakes also contain dangerous industrial waste that kills and destroys water life and water birds. पानी की आलूदगी फैक्ट्रियों से आने वाले जहरीले कूड़े की वजह से पैदा होती है जिसे साफ किए बगैर पानी के नालों में फेंक दिया जाता है. इस तरह बेशुमार समुद्रों की समुद्री रिहाइशगाह मुतासिर होती है. दरियाओं और झीलों में भी ख़तरनाक सनती गंध होता है जो पानी की ज़िंदगी और आबी परिंदों को हलाक और तबाह कर देता है. Second paragraph of water pollution is the waste that pollutes water includes rubbish, plastic bags, empty cans, chemicals and waste. These are just thrown into the water with no thought of the problems they can cause. Many tankers and ships leak crude oil into the ocean. The thick layer of oil over the water kills birds, fish and also underwater plants. The layer of oil stops the supply of oxygen to the water. Birds' feathers become stuck together by the oil and they cannot fly. पानी को आलूदा करने वाले कूड़े में कचरा, प्लास्टिक के बैग और खाली बोतलें, केमिकल और फुजला वगैरह शामिल हैं जिनको पानी में बगैर सोचे समझे फेंक दिया जाता है. बहुत से टैंकर और कश्तियाँ समंदर में खाम तेल फेंकते हैं. पानी के ऊपर तेल की मोटी तह परिंदों, मछलियों और पानी के अंदर पौधों को हलाक करती है. तेल की तह पानी को ऑक्सीजन फराहम नहीं करती. परिंदों के पंख तेल के साथ मिलकर फंस जाते हैं और वो उड़ नहीं सकते.
अभी तक हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन, कंट्रोलिंग डिफोरेस्टेशन, रूल्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट इज एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ये सब पढ़ा है। नेक्स्ट हेडिंग इज कंट्रोलिंग पोल्यूशन, आलूदगी पर काबू पाना। नाउ स्टार्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। क्लीन, fresh water and pollutant free air is important for a healthy life on earth for both animals and humans. There are many ways in which we can control air and water pollution. साफ सुथरा ताज़ा पानी और आलूदगी से पाक हवा दोनों इंसानों और जानवरों की सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हमारे पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम आबी आलूदगी और फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पा सकते हैं। फर्स्ट वे इज़ ड्राइव लेस एंड वॉक मोर। फ्यूअर कार्स ऑन द रोड विल मीन फ्यूअर फ्यूम्स इन द एयर। कम चलाएं और ज़्यादा चलें। सड़क पर कम कारें होने से कम धुआं हवा में होगा। सेकेंड वे इज़ प्लांट मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। थर्ड वे इज़ स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट यूजिंग देम। सेविंग एनर्जी मीन्स लेस यूज ऑफ पावर प्लांट्स विच एड पॉइजनस गैसेस टू द एयर। पंखे और लाइट ना इस्तेमाल करने की सूरत में बंद रखें। तवानाई की बचत का मतलब पावर प्लांट्स का कम इस्तेमाल करना जो जहरीली गैसों को हवा में शामिल करते हैं। फोर्थ वे इज रिसाइकल एंड रीयूज मटेरियल्स टू रिड्यूस वेस्ट। फुजला को कम करने के लिए मवाद को दोबारा इस्तेमाल करें। फिफ्थ वे इज डू नॉट ड्रॉप लिटर। ऑलवेज यूज द बिन। If a bin is not available, carry the rubbish with you until you find a bin. गंद ना फेंकें, हमेशा कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। अगर कूड़ेदान मैसर ना हो तो कूड़ा अपने पास रखें जब तक कूड़ादान मिल ना जाए। सिक्स्थ वे इज बी वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग वाटर। डू नॉट वेस्ट इट। पानी का इस्तेमाल ध्यान से करें, इसे ज़ाया ना करें। रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। कीड़े मार दवाइयों के इस्तेमाल को कम करें। एट्थ वे इज डू नॉट ड्रेन हार्मफुल मेडिसिन्स एंड केमिकल्स इन द टॉयलेट और द सिंक। टॉयलेट या सिंक में खतरनाक दवाएं और केमिकल्स ना फेंकें। Ninth way is keep all boats and ships in good condition to avoid oil spill. तेल के इखराज से बचने के लिए तमाम कश्तियों और जहाज़ों को अच्छी हालत में रखें। Now come to the exercise and the question number 1 is what are the major causes of the destruction of animal habitat? जानवरों की रिहाइशगाह की तबाही की अहम वजूहात बताएं। एनिमल हैबिटेट आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एंड पोल्यूशन। जानवरों की रिहाइशगाह की तबाही की वजह जंगलात का कटाव और आलूदगी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? हाउ कैन वी कंट्रोल डिफोरेस्टेशन? जंगलात का कटाव किसे कहते हैं और इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? डिफोरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज either using the space for factories, homes, farms or for using wood for making furniture or for heating purposes. Deforestation या जंगलात का कटाव का मतलब दरख्तों का काटना है ताकि इसकी जगह पर फैक्ट्रियाँ, घर, खेत या इसकी लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए या आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। Deforestation can be controlled by applying the rules of trees, that is teach people not to cut trees, restore forests by planting more trees, encourage recycling of paper, establish parks and support
प्रोजेक्ट विच वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जंगलात का कटाव पर काबू पाया जा सकता है अगर हम दरख्तों के उसूल पढ़ें। दरख्तों को ना काटने के लिए लोगों को तालीम दें। जहाँ जंगलात काट दिए गए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। पेपर की रिसाइकलिंग करें, पार्क्स कायम करें और जंगलात की हिफाजत के लिए मिलकर काम करने वाले मंसूबों की हिमायत करें। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन वी कट डाउन और डिस्ट्रॉय ट्रीज। जब हम दरख्त काटेंगे या इनको तबाह कर देंगे तो क्या होगा। When we cut down trees, we destroy the habitat of animals which live in forest. जब हम दरख्त काटेंगे तो हम लोग जानवरों की रिहाइशगाह को तबाह कर देंगे जो जंगलात में रहते हैं। The animals die because they have no place to live. तो जानवर मर जाएंगे क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई जगह ना होगी। Question number 4 is what are the major causes of air pollution? फ़ज़ाई आलूदगी की अहम वजूहात बताएं। एयर पोल्यूशन इज़ काज्ड व्हेन हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड वेरियस व्हीकल्स आर एडेड टू द एटमॉस्फेयर। फ़ज़ाई आलूदगी तब होती है जब ख़तरनाक गैसेस फैक्ट्रियों और गाड़ियों से माहौल में जाती हैं। 5 इज़ व्हाट आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। आबी आलूदगी की अहम वजूहात बताएं। Water pollution is caused when water from factories, rubbish and plastic bags, empty cans and chemicals are dumped into the water. आबी आलूदगी उस वक्त होती है जब पानी फैक्ट्रियों से गंद और प्लास्टिक के बैग, खाली बोतलें और केमिकल्स पानी के अंदर फेंक दिए जाते हैं। Question number 6 is how can we control air and water pollution? हम आबी और फ़ज़ाई आलूदगी पर किस तरह काबू पा सकते हैं। वी कैन कंट्रोल पोल्यूशन बाई कीपिंग द वाटर एंड एयर क्लीन। फॉलोइंग आर अ फ्यू वेज ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन। हम आलूदगी पर काबू पानी और हवा को साफ रख कर पा सकते हैं। दर्ज झेल कुछ तरीके हैं जिनसे हम आलूदगी पर काबू पा सकते हैं। नंबर 1 इज़ प्लांट मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। कीड़े मार दवाइयों के इस्तेमाल को कम करें। डू नॉट ड्रेन हार्मफुल मेडिसिन्स एंड केमिकल्स इन द टॉयलेट और द सिंक। टॉयलेट या सिंक में ख़तरनाक दवाएं और केमिकल्स ना फेंकें। एंड द लास्ट इज कीप ऑल द बोट्स एंड शिप्स इन गुड कंडीशन टू अवॉइड ऑयल स्पिल्स। तेल के अखराज से बचने के लिए तमाम कश्तियों और जहाज़ों को अच्छी हालत में रखें। Now come to the book work. Book work. First question is fill in the blanks. खाली जगह पुर करें। Forest land is destroyed to build homes, factories, etc. जंगलात की ज़मीन को इसलिए तबाह किया जाता है कि वहाँ पे घर या फैक्ट्रियाँ बनाई जा सकें। Felled trees are used for making paper, houses, etc. गिरे हुए दरख्तों को पेपर या घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The two major types of pollution are एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। आलूदगी की दो अक़साम हैं, फ़ज़ाई आलूदगी और आबी आलूदगी। फॉरेस्ट आर होम्स टू बर्ड, विल्ड एनिमल एटसेट्रा। जंगलात घर हैं परिंदों और जंगली जानवरों के। एंड द लास्ट इज अनयूज्ड मेडिसिन्स शुड नॉट बी poured डाउन द सिंक बिकॉज दे हार्म मैरीन लाइफ। बगैर इस्तेमाल की हुई अद्वियात को सिंक में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये पानी की रिहाइश को ख़तरा पहुंचा सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।